So we have learned how to draw bar graph and how to draw the double bar graph, right? And also we have done the question in which we learned how to read histogram, and according to the reading of the histogram, we have to give the answers of the certain questions, right? Now we are going to start with making of histogram. All of you should get ready with your graph papers. Get ready with your graph papers. Let us learn that how to draw histogram. So first of all, I am having a data of heights in centimeter and then number of girls. This is 125 to 130. 130 to 135, 135 to 140, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60. And the according numbers are 1, 2, let us take the maximum values. I'm taking 20, 57, 39, 40, 45, 15, and then 12. So we are given heights in centimeter and the corresponding number of girls of a class. Height के accordingly number of girls we are given. We have to draw its histogram. हमें histogram draw करना है. So how we will proceed? We'll make x-axis and y-axis. X-axis and y-axis are to be made like this. Then origin. Then you see the intervals. Intervals are at the gap of 5 units. 125, 130, 135, 130 to 135, 135 to 140 and like that. 5 का gap है intervals में. तो अगर हम first interval 125 शुरू करते हैं, आपने क्या करना होता है, जो आपकी ग्राफ पेपर पे बोल्ड लाइंस है उन पे लिखना होता है 125, 130, 135, 140, 150, 155 and then 160. ठीक है, so this we have to write and this is the heading. Heading भी साथ में लिखनी होती है. ये जो intervals हैं, they are representing what? They are representing heights. तो नीचे इनके heading क्या लिख देंगे? Heights. These are the heights. And along y-axis you have to write the number. Always remember intervals along x-axis and number along y-axis. Number of girls. So I would like to take gap of 10 units each. Maximum value is 57, so I'm taking up to 60. So along x-axis 1 unit is equal to 5 centimeter height. And along y-axis, 1 block is equal to 10 girls. Right now, when test was there of this chapter, I noticed one thing, that the question is about histogram, and most of the students they draw bar graph. Histogram की क्या खासियत होती है, याद रखो. Histogram में कभी भी bars के बीच में gap नहीं होता. Bars they are adjoined, they are adjacent to each other. एक दूसरे के साथ साथ बार होते हैं. हिस्टोग्राम में बार्स के बीच में बिल्कुल भी गैप जो है वो नहीं होता. पहली बात तो ये. दूसरी बात, हिस्टोग्राम में आपने जब बार्स बनाने हैं
किंक, अच्छा जयंत उस दिन पूछ रहा था मैम हर एक में किंक लगता है, ये देख लो किंक कहाँ लगता है। अगर मैं इस y एक्सिस की बात करूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस y एक्सिस, तो यहाँ पे गैप 10 10 का है, सभी जगह एक जैसा गैप है 10 10 10 10 10 10। तो इसका मतलब है यहाँ पे किंक लगाने की जरूरत नहीं है। बट अगर मैं x एक्सिस पे देखूं तो सभी में 5 5 का गैप है, बट फर्स्ट जो गैप है वो 0 से 125 के बीच का गैप जो है वो 5 नहीं है। 0 से 125 तक कितना गैप होता है? 125 का गैप। तो इसका मतलब ये वाला गैप बाकी के गैप्स के साथ मैच नहीं कर रहा। और जब आपका ये वाला गैप, फर्स्ट वाला गैप बाकी वाले गैप्स के साथ मैच नहीं करता, देन यू हैव टू पुट द किंक. Jayant, if you are there in the class, I hope that you are clear now that when the kink is to be put. Jayant is there, I can see. Jayant, is it okay that where to? Yes, Jayant, am I clear about this? मैम अगर एक्स एक्सिस पे 1 2 3 हो तो नहीं ना डालेंगे हम? नहीं, अगर एक्स एक्सिस पे ये वाला गैप मान लो ये से 125 to 130 है, अगर ये वाला गैप जो है वो सेम हो, जैसे 10 20 30 सभी में गैप सेम है, 0 से 10 तक का गैप भी सेम है, पहले ब्लॉक का अगर गैप बाकियों के साथ मिलता है फिर किंक नहीं लगाना होता। बट अगर पहले ब्लॉक का गैप बाकियों से नहीं मिलता, देन यू हैव टू पुट द किंक. इज इट ओके जयंत? ओके मैम, थैंक यू मैम. जैसे यहाँ पे सब में गैप 10 10 का है, पहले ब्लॉक का भी 10 है, मिल रहा है ना सबके साथ, तो यहाँ पे मैंने नहीं लगाया. ठीक है, अब हिस्टोग्राम में बार्स के बीच में गैप नहीं डालना. आप लोगों ने डाल दिया था गैप टेस्ट में, काफी बच्चों ने गलत कर दिया गैप डाल. पहला इंटरवल है 125 to 130 और वैल्यू कितनी है 20. 125 to 130 हमने शुरू किया 125 से, वैल्यू 20 के पास गए, यू टर्न लिया, कहां पे रुके 130. अब जो नेक्स्ट बार है बच्चे इसको छोड़ के अगले पे लिखते हैं, नहीं ऐसा नहीं, नेक्स्ट बार इसी से उठ जाएगा क्योंकि हमारा जहां पे खत्म है वहीं से स्टार्ट है. 130 से स्टार्ट होगा 135 तक 57. सो यू कीप इट 130, यहां से उठाया 57, 50 के बाद 7 लाइंस ऐसे मोड़ा इसको और ये आया 135. देन 135 to 40 39, 30 के बाद 9 लाइंस, दिस इज 39. देन 140 to 145 40, इसी से शुरू करोगे. 140 से आपका इंटरवल शुरू है तो आपने 140 वाली लाइन को ही उठाना है. 140 से 145 तक 40, थोड़ा सा ऊपर, एंड 145 to 150 is 45. 145 to 150 is 45. 145 to 150 is 45. And 150 to 155 is 15. This is 15. And 155 to 160 is 12. ठीक है, so this is the histogram. हाँ जी कृतिका, what do you want to ask? कृतिका, ask your query. मैम स्केल समझा दो इसका फिर से. हाँ, स्केल along x axis वन ब्लॉक कितने कितने का गैप है 5 5 का, तो मैंने 5 सेंटीमीटर लिख दिया. आप 5 स्मॉल यूनिट भी लिख सकते हो. ठीक है, along y axis कितने कितने का गैप है 10 10 का, तो I have written 10 girls. Is it okay कृतिका? चलिए, one more question of histogram I would like to discuss. After that we'll move further. So I'm taking the data, मैं grouping करके डाटा को 5.1 का क्वेश्चन पिक कर रही हूँ. डाटा आई एम टेकिंग लाइक इंटरवल्स. कभी भी हिस्टोग्राम में बार के बीच गैप नहीं छोड़ना. आपने छोड़ा हुआ है टेस्ट में, दैट इज हिज बार ग्राफ 800 to 810.
810 to 820, 820 to 830, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, इतनी ले लेते हैं, समझाना ही इतने तक नहीं हो सके। तो वैल्यूज आर 10, 15, 26, 39, 49, 70 and 75. These are the values. So I'm taking data from myself. So you have to make two perpendicular axes first. Let us make the two perpendicular axes meeting at the origin, right? And the intervals are 800 to 810. So आपने first उस पे लिख देना 800. नेक्स्ट पे कुछ बच्चे ना ऐसे लिखते हैं इंटरवल्स, पहले पे लिख दिया 800 टू 810 पहली लाइन पे, दूसरी लाइन पे लिख दिया 810 टू 820, ये बिल्कुल गलत होता है। एक लाइन पे एक ही नंबर लिख सकते हो आप। सो यू विल राइट 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860 and 870. इधर 10-10 का गैप ले लो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. इस पे कोई हेडिंग नहीं दी हुई, इंटरवल्स हैं तो आप ऐसे लिख दो, कोई हेडिंग ही नहीं है। उधर भी फ्रीक्वेंसी है, यू आर नॉट सपोज टू राइट एनी हेडिंग, फ्रीक्वेंसी है, सीधा लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी, सीधा लिख सकते हो इंटरवल्स। अब अगर मैं एक्स एक्सिस पे देखूं तो सारे में 10-10 का गैप है, बट फर्स्ट वाले में 800 का, तो हमने यहाँ पे किंक लगा, फर्स्ट वाले को हमने बाहर लगा दिया, किंक लगा दिया, ठीक है। सो स्केल कैसे लिखेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर या 10 स्मॉल यूनिट्स, कोई यूनिट नहीं है तो 10 स्मॉल यूनिट्स, वाई एक्सिस 1 ब्लॉक इज 10 स्मॉल यूनिट्स, ठीक है। Let us make the histogram. 800 to 810 frequency is 10. 810 to 820 frequency is 15. 820 to 830 frequency is 26. 830 to 840 frequency is 39. 30 के बाद 9 lines. 840 to 850, अब यहीं से उठाना, 40 वाली लाइन से उठाना, 49. 50 to 60, 70 इसी लाइन से उठाना, and 60 to 70, 75. जहां पे बार खत्म वहीं से शुरू. दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिस्टोग्राम. सबसे बड़ी हिस्टोग्राम की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है कि जहां से बार खत्म होता है हम वहीं से उसको स्टार्ट करते हैं, राइट. इन हिस्टोग्राम जहां से बार शुरू खत्म वहीं से हम उसको स्टार्ट करेंगे. चलिए, so this is all about histogram. Hope now you will not make any mistake in exam as far as histogram is concerned. So now we are going to shift towards pie chart. 5.2 exercise, pie chart. Let us see that what we have learned about pie chart and what are the essential things which we have to keep in mind about pie chart. And moreover, what you have to remember before drawing a pie chart. For drawing a pie chart,
you should know the formula of the central angle of a component. किसी कंपोनेंट का सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए पाई चार्ट ड्रॉ। सेंट्रल एंगल ऑफ ए कंपोनेंट, सेंट्रल एंगल ऑफ ए कंपोनेंट क्या था फॉर्मूला? वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट over sum of all the values multiply 360. Value of the component over sum of the all values multiply 360. This is the formula for the central angle of a component. अगर आपको सेंट्रल एंगल ऑफ द कंपोनेंट का फॉर्मूला नहीं आता तो आपका जो पाई चार्ट है आप नहीं बना सकते। फॉर मेकिंग पाई चार्ट you should know the formula for the central angle of the component. आपको कंपोनेंट का जो सेंट्रल एंगल है उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए if you want to make the pie chart. Let us proceed. First of all, I would like to start with 5.2 exercise. Questions करते हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5.2 का। एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट क्वेश्चन। Question number first, let us see. Survey has been made for the type of the music that a people of the certain group they like. This is the figure pie chart for the survey. Some of the people they like folk song and their percentage is 30%. Other people like light music and they are 40%. Some like semi-classical, and they are 20%. And 10% like the classical. 10% like the classical. Now the question is, 20 people like classical music. How many young people were surveyed? Total 20 people जो हैं, they like classical music. So number of people liking classical music is equal to 20. हमें निकालना है कि टोटल कितने लोगों का सर्वे हुआ। और आपको अगर ये तो नंबर उसने बता दिया कि 20 पीपल जो है वो सेमी क्लासिकल लाइक करते हैं, बट परसेंटेज कितना है क्लासिकल का? 10%। मैंने आपको बताया था आपके मार्क्स आप दो तरह से किसी को बता सकते हो। या तो आप कह सकते हो मेरे 200 मार्क्स आए हैं, या आप कह सकते हो मेरे 66% आए। ठीक है। और जब आपके मार्क्स 210 है, वो क्या है? वो परसेंटेज ऑफ द टोटल है। तो टोटल अगर नंबर हम x ले लें कि x लोगों को सर्वे किया, तो क्लासिकल वाले कितने हो गए? 10% ऑफ x is 20. Total people who have been surveyed, let us take it to be x, and let us suppose that 10%, let us take x to be the total, and how many total percentage of x is semi-classic are the classical people? 10% according to this graph. So percentage remove नीचे 100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 0 0 कट, x over 10 is equal to 20. So x is equal to 200. So there are total 200 people who like classical music. 200 people are there who liked classical music, जिनको classical music जो है वो पसंद है। Next part is, नहीं, there are 200 people who are total in all. X क्या था? X को हमने क्या suppose किया? Total number of people. So X comes out to be 200, means कि कितने लोगों को सर्वे किया? 200 लोगों को सर्वे किया। Next, which type of music is liked maximum number of people? Naturally जिसका percentage ज्यादा होगा। किसका percentage ज्यादा है? Light music का percentage ज्यादा है ना,
तो इसका मतलब लाइट म्यूजिक जो है वो लोगों को ज्यादा पसंद है। इतनी नॉइजी लाइफ हो चुकी है, इतने हम मतलब या डिजिटलाइज होम हो चुके हैं कि हमें अब शोर शराबा कम ही पसंद है, हमें लाइट म्यूजिक पसंद है। सो मैक्सिमम पीपल दे आर लाइकिंग लाइट म्यूजिक, राइट। थर्ड इज, if the cassette company were to make 1000 CDs, how many of each would they make? टोटल 1000 CDs बनानी है तो हर तरह की कितनी बनाएगा? आप 10% ऑफ 1000 निकाल लो, क्लासिकल का नंबर आ जाएगा। 70% ऑफ 1000 निकाल लो, फोक का आ जाएगा। 40% ऑफ 1000 लाइट म्यूजिक के वालों का नंबर आ जाएगा। एंड 20% ऑफ 1000 सेमी क्लासिकल आ जाएगा। ये आप अपने आप कर सकते हो कि जैसे जैसे आप 1000 का परसेंटेज पर्टिकुलर निकालते जाओगे, you will get the number of CDs of a particular liking, right? Next, 360 peoples they've been surveyed, and their liking about different seasons is given. Seasons में लोगों की different seasons की liking दी हुई है। This is season, number of people. Season is summer, rainy, and then winter. And votes, this is not people, number of votes. 90 votes they've been given to summer, 120 to rainy, and 150. Most of the people they like winter season, as we also like winter season, na? So how many of you like winter season or attending classes? Raise your hand. Winter season किस किस को पसंद है? Nobody like winter season. Rainy season, कृतिका को रेनी सीजन पसंद है भाई, ठीक है। और किसी को कुछ पसंद ही नहीं है, ठीक है। तो बचा क्या फिर? आपको समर ही पसंद है सबको। ख्याति को भी रेनी सीजन पसंद है ना? चलो, एनी हाउ वी हैव टू फाइंड द सेंट्रल एंगल एंड देन वी हैव टू ड्रॉ द पाई चार्ट। तो हम एक कॉलम बनाएंगे सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल, जब हम सेंट्रल एंगल की बेटे बात करते हैं तो सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मुझे 90 का सेंट्रल एंगल निकालना है, सबसे पहले मुझे सारी वैल्यूज का टोटल चाहिए। लेट अस फाइंड द टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज। 360 इज द टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज, ठीक है। अब हर एक का सेंट्रल एंगल निकालना है। सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं? जिसका भी सेंट्रल एंगल निकालना है उसको ऊपर रखा, ओवर टोटल इंटू 360, क्योंकि टोटल एंगल हमारे पास 360 होता है। इसको आप सॉल्व कर लो, यू विल गेट इट टू बी 90 डिग्री। जिसका सेंट्रल एंगल निकालना है वो ऊपर, ओवर टोटल, यहाँ पे टोटल 360 है, इंटू 360। सो द आंसर इज 120। यू वांट टू फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ 150, तो यू विल प्लेस 150 इन न्यूमरेटर, 360 इन डिनोमिनेटर, इंटू 360 कट हो। तो ये हमारे पास सेंट्रल एंगल, डिफरेंट कंपोनेंट्स के सेंट्रल एंगल वी आर फाइंडिंग। फॉर समर सीजन वी आर फाइंडिंग आउट द सेंट्रल एंगल, फॉर रेनी सीजन एंड सिमिलरली फॉर विंटर सीजन we are finding out the central angle. Now we have to make a pie chart. So I told you, first of all, for drawing pie chart you have to make a circle of suitable radius. चलिए, मैंने compass नहीं है, मैं ऐसे ही बना रही हूँ। You will make it with the help of the compass, taking center. Now जो आपने ये सर्कल बनाया उसकी एक रेडियस आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। मैंने ये ड्रॉ, वन रेडियस यू हैव टू ड्रॉ। सेंटर से कोई एक रेडियस आपने ड्रॉ कर दी। अब आपने प्रोटेक्टर की हेल्प से, प्रोटेक्टर आई एम हैविंग राइट नाउ, प्रोटेक्टर की हेल्प से यू हैव टू मेक दीज एंगल्स। कौन कौन से एंगल? वन इज 90, 120, 150। फर्स्ट ऑफ ऑल इज 90। कीप द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड मेक इट टू बी 90 डिग्री। स्केल की हेल्प से अब प्रोटेक्टर को घुमाते जाओ।
keep the center of the protector with the center of the circle and you want to make 120 means obtuse angle, बाहर की तरफ होगा, तो ये रहा आपका 120. This is 90, this is 120. जो बचा है it must be equal to 150 अगर आपकी कंस्ट्रक्शन ठीक है. देखो प्रोटेक्टर को घुमाना है, अब प्रोटेक्टर इधर आ गई, it should be 150. It is exact 150 my protector. So अगर लास्ट वाला जो बनाया नहीं है, जो ऐसे ही बन गया वो 150 आ गया, इसका मतलब आपने पाई चार्ट के बाकी के एंगल्स जो है वो ठीक से ड्रॉ किए. कैसे घुमाना होता है प्रोटेक्टर को दिखाती हूँ. 1 2 3. प्रोटेक्टर घूमती जाएगी, सेंटर प्रोटेक्टर का वही रहेगा. जो प्रोटेक्टर की स्ट्रेट लाइन है वो आपकी इन स्ट्रेट लाइन, पहले यहाँ बैठी थी फिर यहाँ फिर यहाँ. इन दिस वे यू विल ड्रॉ द पाई चार्ट ऑफ ए पर्टिकुलर डाटा. एक और कर लेते हैं पाई चार्ट का क्वेश्चन. कलर्स दिए हुए हैं, you have to draw the pie chart. So the given colors are blue, green, red, yellow. This is the color and number of the people who are liking this color. These colors are 18, 9, 6 and 3. Total is 36. So first of all find central angle of each component. Central angle is to be find out. So central angle कैसे find करते हैं? Value of the component, that means this, over sum of all the values 36 into 360. Total angle 180. Value of the component, sum of all the values into 360. Value of the component over sum of all the values into 360. Value of the component, sum of all the values into 360. This way you are calculating the central angle of it. आपको जब तक सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला नहीं लर्न हो रहा ना, तब तक आप भूल जाओ कि आपको पाई चार्ट आप पेपर में बना के आ सकते हो. तो सबसे पहले सेंट्रल एंगल कई बार 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आ जाता है. फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर द वैल्यू 18 एंड द टोटल वैल्यूज आर 36. तो आपने जिसका सेंट्रल एंगल निकालना है वो ऊपर, टोटल नीचे, मल्टीप्लाई बाय 360. ठीक है. तो दिस वे यू विल मेक द क्या पाई चार्ट. चलिए लेट अस स्टार्ट मेकिंग द पाई चार्ट ऑफ दिस डाटा. Circle is to be drawn. Suitable center. उस सेंटर से निकलता हुआ रेडियस. ये तो हर एक पाई चार्ट का कॉमन स्टेप है. कोई किसी भी डाटा का पाई चार्ट या ड्रॉ कर रहे हो, दिस इज द कॉमन स्टेप. ये तो आना ही आना है हर किसी में. ठीक है. अब क्या है, सबसे पहला एंगल है 180. 180 मींस स्ट्रेट एंगल. डिग्री. नेक्स्ट इज 90. क्या करोगे, प्रोटेक्टर का सेंटर और इसका सेंटर मिलाते हुए, सर्कल का सेंटर मिलाते हुए, दिस बिकम्स योर 90. अब स्ट्रेट लाइन ये आ गई, तो आपके प्रोटेक्टर की स्ट्रेट लाइन और सेंटर यहाँ आ जाए. एंगल इज 60 विल बी इनसाइड. ये आपकी प्रोटेक्टर है, इसका अंदर वाला पोर्शन इधर को हो गया, आउटवर्ड वाला उधर हो गया. 60 डिग्री इनसाइड, इट विल बी हियर. जो बचा है वो 30 होना चाहिए. Yes, I'm getting it to be 30. So this is your pie chart. ठीक है बेटे. Let us start with question number 4 of the exercise. 4th question.
question number 4. There is a data in which central angle of the different subjects are given. Central angle for the different subjects are given. हिंदी के लिए सेंट्रल एंगल है 70 डिग्री फॉर हिंदी, साइंस के लिए 80 डिग्री, 80 डिग्री फॉर साइंस, 65 फॉर सोशल साइंस, सोशल साइंस, 90 डिग्री फॉर मैथ्स, central angles, and remaining is 55 degree, and that is for English. English के लिए 55. Central angle of the different subjects, they are given to us. What we want to find, let us see. First is, in which subject, एक minute, if the total marks obtained by a student is 540, total marks हमें दिए हुए हैं 540, total marks are given to be 540. He says, in which subject did the student score 105 marks? किस सब्जेक्ट में बच्चे के जो मार्क्स हैं वो 105 है, यानी कि वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट शुड बी 105. अब टोटल मार्क्स है 540. हमें एक्चुअली 105 का सेंट्रल एंगल निकालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स की जो डिस्क्रिप्शन है, सब्जेक्ट्स के मार्क्स की डिस्क्रिप्शन, वो सेंट्रल एंगल के अकॉर्डिंगली है. तो हम सेंट्रल एंगल निकाल लेते हैं 105 का. सेंट्रल एंगल ऑफ 105, जिसका सेंट्रल एंगल निकालना है वो ऊपर, टोटल वैल्यू नीचे, मल्टीप्लाई 360. सेवेंटी डिग्री. 105 का जो हमारा सेंट्रल एंगल आया 70 डिग्री, और 70 डिग्री कौन से सब्जेक्ट का? हिंदी का. इसका मतलब क्या हुआ रितेश? व्हाट इज 105 का सेंट्रल एंगल 70 डिग्री आया, तो 105 कौन से सब्जेक्ट्स के मार्क्स हुए? हिंदी के, बिकॉज हमारे पास सेंट्रल एंगल हिंदी का 70 डिग्री है, तो इसका मतलब ये हुआ हिंदी के मार्क्स 105. अकॉर्डिंगली विल कंटिन्यू टुमारो.